Welcome to Unacademy Studio Rise. So this is lecture number 2 for brief history of modern India through MCQs. So Spectrum को हम कर रहे हैं through MCQs. Hello, my name is Prince Luthra, All India rank 577, and here on Unacademy I teach ethics, history, and current affairs. So there are various educators for various subjects like political science, current affairs, ethics, environmental science on Unacademy platform, and we have some of the top educators as well, like Mr. Mrunal Patel, Mr. Roman Saini, Dr. Siddharth Arora, and many more. We have Unacademy Plus platform in which you can subscribe for UPSC CIC subscription, and subscriptions are of various durations. 1 month के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 3, 6, 12, 24 months के पैकेजेस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं using the code PL Live, and you will get a 10% discount. The cost of 12 months package is 40,000, and after using the code the cost will come down to 36,000. Similarly, there is another course for 24 months जिसकी cost 64,000 है, but after using the PL Live code the cost will come down to 57,600. So आपको Unacademy Plus application को download करना है, and then you have to select the subscription duration, और इसके बाद आपको PL Live code use करके payment कर देना है. The benefit of Unacademy Plus is that you get to see the live lectures, and अगर आप लाइव लेक्चर मिस कर देते हैं then you can download the lecture or the courses as well, ताकि जब भी आपको convenient लगे उस particular duration में आप उसको देख सकते हैं. Now Unacademy Plus के ऊपर various जो courses हैं वो upload किए हुए हैं, जो कि prelims से, mains से, answer writing practices, interview से related है, और आने वाले time में भी जो और courses upload किए जा रहे हैं उसका भी आप benefit ले सकते हैं. So we will start our lecture with a quote of the day. Failure is simply a few errors in judgment repeated every day. So failure जो होता है it's an accumulation of errors. For example, if you miss reading newspaper on a particular day, it will not impact your preparation. But अगर आप ऐसी यही error को रोज रोज repeat करते हैं, then it will become a disaster or a failure. Similarly, let's say कि अगर आप एक दिन किसी fast food को consume करते हैं, it will not impact your health in a day. But यही errors of judgment आप everyday basis पे करते हैं, then it will lead to diseases. So we'll come back to the question number 1. Which of the following statements is or are correct about Britishers? 3 statement दिए Britishers के बारे में, कौन सी statement सही है इसमें से? First statement says Bombay had been gifted to King Charles II by King of Portugal. तो पोर्चुगल के जो किंग थे उन्होंने किंग चार्ल्स II को बॉम्बे जो था वो दे दिया था. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है गोल्डन फरमान इशू टू ब्रिटिशर्स बाय सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. तो जो गोल्डन फरमान इशू किया गया था वो ब्रिटिशर्स को गोलकोंडा के सुल्तान ने किया था. थर्ड इज रूलर ऑफ चंद्रगिरी डिड नॉट गिव फोर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस टू ब्रिटिशर्स कंसर्निंग फैक्ट्री ऑफ मद्रास. तो ब्रिटिशर्स अपनी मद्रास की फैक्ट्री को फोर्टिफाई करना चाहते थे, हालांकि जो रूलर्स ऑफ चंद्रगिरी थे उन्होंने वो प्रिविलेजेस उनको नहीं दी, ब्रिटिशर्स को वो प्रिविलेज नहीं दी. टेक 15 सेकेंड्स, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके अंदर. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है बॉम्बे हैड बीन गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स II बाय किंग ऑफ पोर्चुगल. ये स्टेटमेंट सही है. बेसिक हुआ क्या था, एज ए डाउरी जो बॉम्बे था वो दिया गया था ब्रिटिशर्स को, बिकॉज जो किंग चार्ल्स II थे वो शादी कर रहे थे, मैरिज कर रहे थे पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन से, और ये 1662 में हुआ था, और एज ए डाउरी बॉम्बे को दिया गया था. पहली स्टेटमेंट सही है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. गोल्डन फरमान इशूड बाय ब्रिटिशर्स इशूड टू ब्रिटिशर्स बाय सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. यस, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने ब्रिटिशर्स को एक गोल्डन फरमान दिया था. गोल्डन फरमान के बारे में आगे पढ़ेंगे हम. थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं. रूलर ऑफ चंद्रगिरी डिड नॉट गिव फोर्टिफिकेशन प्रिविलेज टू ब्रिटिशर्स कंसर्निंग फैक्ट्री ऑफ मद्रास. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर प्रिविलेज थी फोर्टिफिकेशन की, मद्रास को फोर्टिफाई करना चाहते थे कौन? जो ब्रिटिशर्स थे. ये जो पर्टिकुलर प्रिविलेज थी ये चंद्रगिरी के रूलर्स ने ब्रिटिशर्स को दे दी थी, और इसी के बाद जो था इसी एरिया को एज अ सेंट जॉर्ज लेबल किया गया, और इवेंचुअली जो ब्रिटिशर्स की पहले मेन हेडक्वार्टर हुआ करता था मसूलीपट्टनम होता था, वो भी इन्होंने शिफ्ट कर दिया, बिकॉज सेंट जॉर्ज जो था वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था और फोर्टिफाइड था. सो आंसर एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे पहली 2 स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आंसर है बी. नेक्स्ट चलते हैं.
So question number second says which of the following statements is or are correct? Shah Shuja, the Subedar of Bengal in 1651 allowed the English to trade in Bengal. तो शाह शुजा ने, जो कि उस टाइम बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे, उन्होंने इंग्लैंड को, इंग्लिश लोगों को अलाउ कर दिया कि वो बंगाल में अपना ट्रेड कर पाए. देखेंगे स्टेटमेंट को. सेकंड, जॉब चार्नोक, अ कंपनी एजेंट, स्टार्टेड नेगोशिएशन विद मुगल्स सो एज टू रिटर्न टू अ प्लेस कॉल्ड सुल्तानाती. तो जॉब चार्नोक जो थे वो एक फैक्टर थे और कह सकते हैं एक एजेंट थे कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी के, और वो नेगोशिएट कर रहे थे मुगल्स के साथ ताकि उनको सुल्तानाती में ट्रेड करने दिया जाए. ठीक है, दो स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. टेक 15 सेकेंड्स. क्या आंसर हो सकता है इसका? ओके, पहली स्टेटमेंट, शाह शुजा द सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1651, उन्होंने यस अलाउ कर दिया था बंगाल को. इसके लिए उन्होंने 3000 रुपीज लिए थे ब्रिटिशर से, और ये एक एनुअल पेमेंट करनी पड़ती ब्रिटिशर्स को एक एनुअल पेमेंट करनी पड़ती थी. इस एनुअल पेमेंट के बाद वो जितना भी चाहे बंगाल में ट्रेड कर सकते थे. पहली स्टेटमेंट सही है. सेकंड, जॉब चार्नोक, अ कंपनी एजेंट, स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद द मुगल्स टू रिटर्न टू अ प्लेस कॉल्ड सुल्तानाती. ये बिल्कुल बात ठीक है. हुआ क्या था, पहले हुगली का जो रीजन था, ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड किया करते थे, लेकिन मुगल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने की वजह से हुगली ब्रिटिशर्स को छोड़ के जाना पड़ा और इनको एक पर्टिकुलर गंगा रीजन के पास ट्रेड करने की प्रिविलेजेस दी गई. लेकिन ये जो एरिया था गंगा बेसिन के पास, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, और जो प्रॉफिट्स ब्रिटिशर्स कमाते थे हुगली में वो नहीं कमा पा रहे थे उस रेंज तक. देयरफॉर जॉब चार्नोक को भेजा गया कि मुगल से आप बात करिए. ऑफ कोर्स वो हुगली तो हमें नहीं देंगे बिकॉज हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है काफी मुगल्स के साथ. उन्हें कहिए कि कहीं ना कहीं हमें एक बीच का रास्ता सुझा दें, और ये सुल्तानाती जो प्लेस था यहाँ पे ब्रिटिश रह के ट्रेड करना चाहते थे, बिकॉज यहाँ पर उनको लगता था इवन तो हुगली जितना प्रॉफिट नहीं रहेगा यहाँ पे, उतना हम कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे. नेवरदलेस जिस लोकेशन पे वो थे, ये जो लोकेशन थी उससे बेटर थी. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि जॉब चार्नोक ने एज एन एजेंट नेगोशिएट किया मुगल्स के साथ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंग्लिश सक्सीडेड इन गेटिंग द परमिशन टू बाय जमींदारी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस. अब कुछ एक विलेजेस की जमींदारी के जो राइट्स थे वो ब्रिटिशर्स को मिले. 3 नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन से वो नाम है? सुल्तानाती, गोबिंदपुर एंड कालीकत, जिसे काली घाट भी कहा जाता है. ठीक है, तो कौन से ऐसे विलेजेस थे जहां के राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल चुके थे? टेक 15 सेकेंड्स. Okay, so English succeeded in getting the permission to buy zamindari of which of the following villages? Answer is first Sultanati, Gobindpur, कालीगढ़. तीनों के राइट्स जो थे, जमींदारी के राइट्स, वो ब्रिटिशर्स को मिल गए थे और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक पेमेंट करी थी. इसके ओनर को द पेमेंट वाज ऑफ 1200 रुपीज. 1200 रुपए देने के बाद जो जमींदारी की जो परमिशन थी वो ब्रिटिशर्स को मिल चुकी थी. आंसर है यहाँ पर सी. नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following Mughal emperor gave 3 famous फरमान्स which later were regarded as Magna Carta? तो 3 ऐसे फरमान दिए थे एक मुगल एम्परर ने जिसको बाद में मैग्ना कार्टा के तौर पे याद रखा जाता है. तो नाम दिए हुए हैं फर्रुखसियार, शाहजहां, जहांदार शाह, शाहजहां 2. इनमें से वो कौन से एम्परर थे? टेक 15 सेकेंड्स. क्या आंसर हो सकता है इसका? ओके, सो यहां हमारे आंसर है फर्रुखसियार. फर्रुखसियार की जो कोर्ट थी वहां पे जॉन सरमैन ये पहुंचे थे और इन्होंने नेगोशिएट किया था फर्रुखसियार के साथ, और उसके बाद फर्रुखसियार ने 3 ऐसे फेमस फरमान इशू किए थे. अब हम देखेंगे इसे 3 फेमस फरमान या मैग्ना कार्टा जो कहा जा रहा है इसके रेपरकशंस क्या थे. इसके बाद क्या हुआ? इन फरमान्स को मिलने के बाद, आंसर ए है यहाँ पे, इन फरमान्स को मिलने के बाद जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिशर्स का पर्टिकुलरली बंगाल के अंदर, वो एग्जाम्प्ट हो गया. उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि इसमें 3000 रुपीज ड्यूटी चार्जेस ब्रिटिशर्स ऑलरेडी दे रहे थे. तो एग्जाम्पशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, ये फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को. दूसरा, ब्रिटिशर्स के पास पावर हो गई कि वो दस्तक या पासेस, पहले शिप्स चला करती थी और उनको पास कराने के लिए दस्तक या पासेस चला करते थे, वो इश्यू करने की पावर भी ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी इस फरमान के बाद. देन
ब्रिटिशर्स को ये भी राइट मिल गए थे कि वो चाहे तो कैलकाटा या उसके आसपास के रीजन में जितनी भी लैंड चाहे रेंट पे ले सकते हैं और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कॉइन्स जो वो मिंट किया करते थे, मुंबई में उनकी फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की जहाँ पे वो अपने कॉइन्स मिंट किया करते थे, वो अलाउड हो गए थे सभी मुगल टेरिटरी के ऊपर कि वो जो कॉइन्स होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे। तो बेसिकली एक पैरेलल इकोनॉमी जो थी वो मुगल्स ने चला दी थी और एक तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट भी चल पड़ी थी, क्योंकि जब आपने ब्रिटिशर्स की कॉइन्स को एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब एक तरीके से इकोनॉमी को आप अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये इसलिए यही से मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमी का काफी ज्यादा लॉस हुआ था मुगल्स को इसकी वजह से और ब्रिटिशर्स टुक द एडवांटेज ऑफ दिस। तो आंसर हमारा फरूक सियार है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। Which of the following statements is or are correct about French in India? French were the last Europeans to come to India with the purpose of trade. तो फ्रेंच जो थे वो सबसे लास्ट में आए थे और किस चीज के लिए आए थे? वो उनकी कोई टेरिटोरियल इच्छा थी या फिर वो सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए आए थे? देखेंगे फ्रेंच वर्ड के अंदर पोर्टुगीज। सेकंड, फ्रेंकोइस कैरन headed the expedition to India setting up a factory in सूरत। तो फ्रेंकोइस कैरन जो गवर्नर था फ्रांस का और फ्रांस ने उसे डेप्यूट किया था इंडिया के अंदर, उन्होंने एक एक्सपीडिशन वो लेके आए थे इंडिया में और पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में एस्टैब्लिश करी थी। कैनन बिल्ट अ फ्रेंच फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन 69। तो क्या उन्होंने एक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में भी एस्टैब्लिश करी थी? 3 स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने कौन कौन सी है इसमें से। टेक 15 सेकेंड्स। ओके, पहली स्टेटमेंट क्या है? फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम। यस, सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज आए थे। सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे और कमर्शियल पर्पस के लिए ही आए थे। सेकंड, फ्रेंकोइस कैरन हेडेड एन एक्सपीडिशन टू इंडिया सेटिंग अप अ फैक्ट्री एट सूरत। यस, जो उनके गवर्नर थे, फ्रेंच के गवर्नर जिनको इंडिया में डेप्यूट किया था, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। देन कैरन बिल्ट अ फ्रेंच फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन 69। एक फैक्ट्री उन्होंने मसूलीपट्टनम में भी बनाई थी और इसमें मैरकारा, बेसिकली मैरकारा ही वाज अ पर्शियन। कैरन जो कि जनरल थे फ्रांस के, उनको यहां तक पहुंचने में हेल्प करी थी और फ्रेंच फैक्ट्री जो था उसको बनाने में उन्होंने साथ दिया था। देन ये फैक्ट्री बनाई कब गई थी मसूलीपट्टनम वाली? आफ्टर द परमिशन टेकन फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। तो गोलकोंडा के जो किंग थे उनकी परमिशन के बाद ये फैक्ट्री बनाई गई थी। ठीक है, सो हमारा आंसर यहां हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following were important trade centers of French in India? तो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए फ्रेंच आए थे और उनके कुछ कुछ ट्रेड सेंटर्स जो थे वो इंडिया के अंदर काफी सिग्निफिकेंट लोकेशंस पे थे। ये 4 इसके अंदर दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा फ्रेंच का ट्रेड सेंटर था और कौन सा नहीं था? टेक 15 सेकंड्स, बताइए क्या माहे था, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार। टेक 15 सेकंड्स, बताइए कौन कौन से ये ट्रेड सेंटर्स फ्रेंच एम्पायर के अंडर में थे और कौन से नहीं थे। ओके, सो माहे फ्रांस के अंदर एक ट्रेड सेंटर था, सही है स्टेटमेंट। कराईकल भी था, बालासोर, कासिम बाजार, चारों ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे फ्रांस के इंडिया के अंदर। इसके अलावा उनका जो मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस था वो कहां से चलता था? पौंडीचेरी से। पौंडीचेरी वॉज एन इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर फ्रेंच एम्पायर। ठीक है, सो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो चारों ही जो सेंटर्स थे काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे फ्रांस के इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ट्रीटी ऑफ राइसविक वाज साइन बिटवीन। तो ट्रीटी ऑफ राइसविक क्या थी वो पढ़ेंगे हम, और ये बताना है आपको इन 15 सेकेंड्स कि किस किस के बीच में ये ट्रीटी साइन करी गई थी। ओके, सो द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन फ्रेंच एंड डच। आंसर इसका है ए। डच ने क्या किया था? डच लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था फ्रेंच का, दैट वाज पौंडीचेरी, उसको कैप्चर कर लिया था 1693 में। ठीक है, इसके बाद ये ट्रीटी ऑफ राइसविक साइन करी गई और जो पौंडीचेरी था वो वापस फ्रांस को दे दिया गया और एटलीस्ट ये डिसाइड हो गया कि हम फ्रांस को वापस कर देंगे। लेकिन इवन इस ट्रीटी के बाद भी पौंडीचेरी देने में डच लोगों ने 2 साल लगा दिए। ठीक है,
सो आंसर इज ए, फ्रेंच एंड डच के बीच में राइसविक ट्रीटी जो थी वो साइन करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ गवर्नर ऑफ फ्रांस इन इंडिया? नोट पूछा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा ऐसा गवर्नर था जो कि इंडिया के अंदर डिप्यूट नहीं किया गया था और फ्रांस ने एज अ गवर्नर नहीं भेजा था इंडिया के अंदर? तो कुछ नाम दिए गए हैं, लेनॉयर, डूमस एंड डुप्लेक्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा गवर्नर था जो इंडिया में एज ए गवर्नर ऑफ इंडिया नहीं भेजा गया था? टेक 15 सेकेंड्स। ओके, लेनॉयर, डूमस एंड डुप्लेक्स। डुप्लेक्स तो काफी फेमस है, कर्नाटिक वॉर्स जो होंगी उसमें डुप्लेक्स का काफी सिग्निफिकेंट रोल रहेगा, लेकिन तीनों के तीनों ही गवर्नर थे। ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि नॉट अ गवर्नर, आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों के तीनों इंडिया के अंदर गवर्नर रह चुके थे जिसे फ्रेंच एम्पायर ने डिप्यूट किया था। ठीक है, इसमें एक बात जानना जरूरी है, बिकॉज इंडियन ओशन के अंदर फ्रांस का काफी डोमिनेशन था, और पर्टिकुलरली यहाँ पे मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड, यहाँ पे इनकी फ्लीट जो थी वो हमेशा रहती थी, और इन फ्लीट्स का वो यूज भी करते थे, इस अपनी नेवी का वो यूज करते थे जब भी कोई फाइट होती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले ये देख सकते हैं यहाँ पे मॉरिशस है और रीयूनियन है, यहाँ पे फ्रांस की जो नेवल पावर थी वो यहाँ पे स्टे करती थी, और अगर कहीं पे भी इस एरिया में कोरोमंडल कोस्ट के आसपास भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता था, कुछ वॉर और बैटल जैसी सिचुएशन अराइज होती थी, तो यहाँ से उनको रीइंफोर्समेंट मिलता था। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? 3 कर्नाटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। 3 कर्नाटिक वॉर्स लड़ी गई, किसके बीच में? फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। क्या फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में ही लड़ी गई थी कर्नाटिक वॉर्स? देखेंगे, फ्रेंच एंड इंग्लिश वर एट लॉगरहेड्स ड्यू टू ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ऑस्ट्रिया में भी वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी दोनों के बीच में, मतलब यूरोप में भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। थर्ड इज 7 ईयर वॉर्स वाज फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। जो 7 ईयर वॉर, ये काफी इंपॉर्टेंट वॉर है, ये जो वॉर चल रही थी ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चल रही थी। देखेंगे, टेक 15 सेकेंड्स, बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, कौन सी गलत है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। कर्नाटिक वॉर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये अभी आगे एमसीक्यूज में आप देखेंगे, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ही थी, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में चल रही थी। सेकेंड, फ्रेंच एंड इंग्लिश वर एट लॉगरहेड्स ड्यू टू ऑस्ट्रियन वॉर। इंडिया में ही जो फ्रांस और ब्रिटिशर्स थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट में थे, इवन यूरोप में भी वो अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से इस चीज का पता चलता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, 7 ईयर वॉर इंपॉर्टेंट क्यों थी? बिकॉज इसी वॉर के बाद ये कंक्लूड हो गया कि जो मास्टर्स ऑफ इंडिया पे कौन राज करेगा, दैट वाज डिसाइडेड बाय द एंड ऑफ दिस वॉर, कि इंग्लिश जो लोग हैं, मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं, वो लोग रूल करेंगे इंडिया के ऊपर, क्योंकि फ्रांस जो था उस वॉर में हार चुका था और काफी हद तक उनको नुकसान हुआ था और काफी सारी टेरिटरीज उनको सीड करनी पड़ी थी। एंड आफ्टर दिस वॉर ओनली जो फ्रांस था, इट बिकेम जस्ट अनदर कंट्री लाइक पोर्टुगीज और डच, whose role was very limited in Indian territory। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। 7 ईयर वॉर जो थी was fought between French and English। तीनों स्टेटमेंट हो गई, तीनों हमारी करेक्ट है, आंसर इज सी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। इंग्लिश नेवी अंडर बर्नेट सीज्ड सम फ्रेंच शिप्स टू प्रोवोक फ्रांस। तो इंग्लिश नेवी जो थी वो प्रोवोक कर रही थी फ्रांस को लड़ाई करने के लिए। देखते हैं, डुप्लेक्स वाज हेडिंग द फ्रेंच फोर्सेस। डुप्लेक्स जो थे, ही वाज द गवर्नर ऑफ फ्रांस, जो कि इंडिया में डिप्यूट किया हुआ था। ही वाज हेडिंग द फ्रेंच फोर्सेस, तो फ्रांस की तरफ से डुप्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। थर्ड, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड इन 1748 विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी उसे कंक्लूड किससे किया गया? ट्रीटी ऑफ पेरिस से। कंसीडर दीज 3 स्टेटमेंट्स, कौन सी सही है कौन सी गलत है। टेक 15 सेकेंड्स। इंग्लिश नेवी अंडर बर्नेट सीज्ड सम फ्रेंच शिप्स टू प्रोवोक फ्रांस। इंग्लिश जो लोग थे, दे वांटेड टू स्टार्ट अ बैटल,
ठीक है, वो फ्रांस के साथ एक बैटल स्टार्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रोवोक करना शुरू किया और फ्रेंच शिप्स को सीज कर लिया। अब जो फ्रांस के लोग थे वो भी चुप बैठने वाले नहीं थे। इवन फ्रेंच रिटेलिएटेड और उन्होंने क्या किया, दे सीज्ड मद्रास इन 1746। तो मद्रास वॉज एन इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर ब्रिटिशर्स, उसको सीज कर लिया यूजिंग द नेवल फ्लीट ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस की हेल्प लेके, क्योंकि वहां पे उनकी नेवी पहले ही थी, उसकी हेल्प लेके जो मद्रास था उस पर कब्जा कर लिया। फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशस ने इसमें हेल्प करी उनकी। दस बिगिन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। जब ब्रिटिशर्स ने उनको प्रोवोक किया, फ्रांस ने रिटेलिएट किया, तो उसके बाद ऑफकोर्स फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो गई। सेकेंड, डुप्लेक्स वॉज हेडिंग द फ्रेंच फोर्सेज। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो फ्रांस था उसकी तरफ से जो गवर्नर हेड कर रहे थे दैट वाज डुप्लेक्स। थर्ड, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड इन 1748। सही है, ये भी 1748 में खत्म हुई थी विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आधी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो थी उसके बाद जो ट्रीटी करी गई दैट वाज ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle। दिस वाज द ट्रीटी साइन, नॉट द ट्रीटी ऑफ पेरिस। आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle। तो Aix-la-Chapelle के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे और इसके लिए 3 स्टेटमेंट दिए। मद्रास वॉज केप्ट बाय फ्रेंच, तो जो मद्रास पे कब्जा किया गया था फ्रेंच ने वो अपने पास ही रखा, देखेंगे। सेकंड, फ्रेंच गोट देयर टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस की टेरिटरीज थी वो ब्रिटिशर्स ने उनको वापस कर दी, देखेंगे। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन रीच्ड अ कंक्लूजन। जो यूरोप के अंदर फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी ऑस्ट्रिया को लेके, वो जो था कंक्लूड हो चुका था। मतलब ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन जो थी उसके ऊपर कंक्लूजन हो चुका था, उसके ऊपर एक बोनहोमी और कंसेंसस एस्टैब्लिश हो चुका था। 3 स्टेटमेंट है, टेक 15 सेकेंड्स। क्या आंसर हो सकता है इसका? ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज मद्रास वाज केप्ट बाय फ्रेंच। देखिए तो पहली 2 स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि जब फ्रांस को उनकी टेरिटरी वापस मिल गई नॉर्थ अमेरिका की, तो फ्रांस को भी तो मद्रास वापस करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज मद्रास जो सीज किया गया था वो वापस कर दिया गया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए बी एलिमिनेट हो जाएगा और सी भी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, फ्रेंच गोट देयर टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका, ये सही है। एंड ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, जो ऑस्ट्रिया को लेके डिस्प्यूट चल रहा था दोनों के बीच में, उसके ऊपर भी कंक्लूजन एस्टैब्लिश हो गया। सो आंसर इज डी, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दे आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट बैटल ऑफ सेंट थॉम। सेंट थॉम की बैटल काफी फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 3 स्टेटमेंट दिए। इट वॉज द फाइट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेज एंड फोर्सेज ऑफ अनवरुद्दीन। तो ये जो फाइट हुई थी, ये जो बैटल हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी? फ्रेंच के बीच में और अनवरुद्दीन के बीच में। ठीक है, अब हमें नहीं पता इन दोनों के बीच में हुई थी। लेट्स कंसीडर सेकंड स्टेटमेंट, अनवरुद्दीन वाज द नवाब ऑफ हैदराबाद। अनवरुद्दीन क्या हैदराबाद के नवाब थे? देखेंगे। अ स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर महफूज खान एट सेंट थॉम। तो फ्रेंच की आर्मी ने महफूज खान की इंडियन आर्मी को हरा दिया था इसके अंदर। टेक 15 सेकेंड्स। क्या आंसर हो सकता है इसका? सोचिए। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट वाज फॉट बिटवीन फ्रेंच फोर्सेस। जो सेंट थॉम की बैटल थी वो फ्रेंच और अनवरुद्दीन के बीच में हुई थी। पहली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन दोनों ही डिफरेंट पॉलिटिकल मिलिट्री प्रोविंस के बीच में ये जो फाइट थी ये हुई थी। सेकंड, अनवरुद्दीन वाज द नवाब ऑफ हैदराबाद। यहाँ पे हैदराबाद नहीं है, बिकॉज अनवरुद्दीन वाज द नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, एलिमिनेट क्या हो गया? सी और डी एलिमिनेट हो गए। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर महफूज खान एट सेंट थॉम। तो एक छोटी सी आर्मी थी, आई थिंक कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोग थे इसके अंदर, फ्रेंच की आर्मी के अंदर। इन्होंने एक बहुत ही बड़ी आर्मी जो इंडियन आर्मी थी महफूज खान की, इसको हरा दिया था। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसके बाद इट वॉज एन आई ओपनर, बिकॉज इसके बाद काफी लोगों को समझ में आ गया कि एक डिसिप्लिन स्मॉल आर्मी एक बहुत बड़ी आर्मी को जो कि डिसिप्लिन नहीं है उसको हरा सकती है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सेकंड कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद सेकंड पे चलते हैं।
दो स्टेटमेंट दी गई हैं। द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर वाज डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क। तो निजाम उल मुल्क की डेथ के बाद जो सेकंड कर्नाटिक वॉर थी उसको फिलिप मिला, मतलब दैट बिकेम अ प्रीकर्सर। निजाम उल मुल्क की जो डेथ थी दैट वाज अ प्रीकर्सर और अ कॉजल फैक्टर फॉर सेकंड कर्नाटिक वॉर। देखेंगे डूमस वाज हेडिंग फ्रांस इन सेकंड कर्नाटिक वॉर एज गवर्नर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंच ने जो गवर्नर भेजा था इंडिया के अंदर रूल करने के लिए दैट वाज डूमस। ऐसा स्टेटमेंट कह रही है, देखेंगे करेक्ट है कि नहीं है। टेक 15 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट, क्या आंसर हो सकता है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर वाज द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क। यहाँ हुआ क्या था, निजाम उल मुल्क की डेथ हुई, उसके बाद उसके बेटे का नाम था नासिर जंग और उसके ग्रैंडसन का नाम था मुजफ्फर जंग। सो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई बिकॉज बोथ ऑफ देम वांटेड टू बी द नेक्स्ट निजाम। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे और जो फ्रेंच थे वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब इसी की वजह से इट बिकेम, जो दो मेजर पावर्स थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, उनके बीच में फर्दर जो रिफ्ट थी वो बढ़ गई और that led to second Carnatic War. So it was one of the causal factors. पहली स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, डूमस वाज हेडिंग फ्रांस इन सेकंड कर्नाटिक वॉर एज गवर्नर ऑफ इंडिया। सो इट वाज नॉट डूमस, इट वाज डुप्लेक्स। हुआ क्या था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो हुई थी उसके बाद काफी बेनिफिट्स मिले थे फ्रांस को और ये किसके अंडर में हुई थी, डुप्लेक्स वाज द गवर्नर। तो डुप्लेक्स को लगा ठीक है सेकंड वॉर स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो इस बेनिफिट्स को जो पहले फ्रांस को मिले थे उसको इंक्रीज और एक्सपेंड करना चाहते थे एंड दैट्स व्हाई डुप्लेक्स ने स्ट्रेटजी बनाई कि हम सेकंड कर्नाटिक वॉर करेंगे। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे, पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट डूमस नहीं है, डुप्लेक्स है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर। तो सेकंड कर्नाटिक वॉर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबेदार ऑफ डेक्कन। तो मुजफ्फर जंग को डेक्कन का सूबेदार बना दिया गया। सेकंड, डुप्लेक्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ऑल द मुगल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। तो रिवर कृष्णा के नीचे साउथ में जितनी भी टेरिटरी थी वहां पे जो हेड थे मुगल टेरिटरीज के वो डुप्लेक्स बन गए थे बिकॉज फ्रांस का जो डोमिनेशन था वो इंक्रीज हो चुका था इनिशियल जो कर्नाटिक वॉर्स हुई थी। थर्ड इज अ फ्रेंच आर्मी अंडर डुप्लेक्स वाज स्टेशन एट हैदराबाद। तो हैदराबाद में भी एक आर्मी उन्होंने बिठा रखी थी, किसने, फ्रेंच ने। इस वॉर के बाद ऐसा हुआ। ठीक है, सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज और काफी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है फ्रेंच के लिए। टेक 15 सेकेंड्स, कौन कौन से इसकी स्टेटमेंट सही है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबेदार ऑफ डेक्कन। यस, मुजफ्फर जंग को काफी बेनिफिट मिला था इसके बाद बिकॉज फ्रेंच उनको सपोर्ट कर रहे थे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड इज डुप्लेक्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। यस, जो सदर्न इंडिया था वहां पे पूरे तरीके से फ्रांस जो था वो डोमिनेट कर रहा था उस टाइम पे। तो यस, डुप्लेक्स को गवर्नर बना दिया गया था मुगल टेरिटरीज का। थर्ड स्टेटमेंट, फ्रेंच आर्मी अंडर डुप्लेक्स वाज स्टेशन एट हैदराबाद। हैदराबाद में एक आर्मी तो स्टेशन करी गई थी फ्रेंच आर्मी, बट प्रॉब्लम थी कि वो डुप्लेक्स के अंडर में नहीं थी, दैट वाज अंडर बसी। ही वाज अनदर इंपॉर्टेंट फिगर। देन बसी के अंदर ये जो पर्टिकुलर फ्रेंच आर्मी थी उसे स्टेशन किया था हैदराबाद के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा टेरिटरीज नियर पौंडीचेरी एंड ऑल्सो सम एरियाज ऑन द उड़ीसा कोस्ट। तो पौंडीचेरी और उड़ीसा कोस्ट, लेट्स से यहाँ पे उड़ीसा और मसूलीपट्टनम के पास, सो लेट्स से मसूलीपट्टनम इस एरिया। तो ये जो टेरिटरी थी इस एरिया की, ये भी काफी सारी टेरिटरीज जो थी सीड कर दी गई किसको, फ्रेंच को। सो फ्रेंच एक्वायर्ड वेरियस एंड मेनी टेरिटरीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आफ्टर सेकंड कर्नाटिक वॉर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट डुप्लेक्स। डुप्लेक्स के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए, कौन सी इसमें से सही है। पहली, ही वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया। तो उसे डायरेक्टर जनरल बना दिया गया फ्रेंच कॉलोनीज का, देखेंगे इसे। He made a lot of money by private trade which was then permitted to servants of French company। जैसे सिविल सर्वेंट्स को आज ट्रेड नहीं करने दिया जाता है तब ये अलाउड होता था और इसी तरीके से डुप्लेक्स ने अपने प्राइवेट ट्रेड करके काफी पैसा बनाया। नेक्स्ट, डुप्लेक्स was also appointed as governor of चंद्रनगर।
तो डुप्लेक्स को चंद्रनगर का भी गवर्नर बनाया गया। टेक 15 सेकेंड्स। Okay. First statement says he was appointed as DG of French colonies in India. This statement is right. जो डुप्लेक्स थे उसको डीजी बना दिया गया था जितनी भी फ्रेंच की कॉलोनीज थी इंडिया के अंदर। सेकंड, ही मेड अ लॉट ऑफ मनी बाय प्राइवेट ट्रेड। यस, प्राइवेट ट्रेड जो था कंपनी अलाउ करती थी, फ्रेंच कंपनी, इवन जो सर्वेंट्स होते थे उनको भी, और प्राइवेट ट्रेड के थ्रू डुप्लेक्स ने काफी पैसा बनाया। देन थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, डुप्लेक्स वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ चंद्रनगर। यस, चंद्रनगर का भी गवर्नर उसे बनाया गया था। तीनों स्टेटमेंट हमारी सही होगी, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ इनिशियली जो थे थर्ड स्टेटमेंट को अगर देखें, डुप्लेक्स वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ चंद्रनगर, सही है। सबसे पहले पौंडीचेरी का उसे गवर्नर बनाया गया था एंड देन चंद्रनगर का। पौंडीचेरी का कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पौंडीचेरी वाज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ डुप्लेक्स, इसी वजह से उसने पौंडीचेरी में काफी सारे इश्यूज देखे और उसको सोल्यूशन उनका प्रोवाइड करने की कोशिश करी। जैसे कि पौंडीचेरी एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मराठा इन्वेजन होता रहता था, फेमाइंस आते रहते थे, जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी वो अनकल्टिवेटेड लैंड काफी ज्यादा थी, केओटिक कंडीशंस थी वहां पे। तो इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए डुप्लेक्स ने काम करना शुरू किया। इवन उसने अपनी पर्सनल मनी, पर्सनल वेल्थ को भी यूज किया, उसने यूज किया पौंडीचेरी को इंप्रूव करने के लिए। क्या क्या चीजें करी उसने पौंडीचेरी के अंदर? उसने एक तरीके से एम्पोरियम ऑफ कॉमर्स बना दिया था। ठीक है, सो काफी इंप्रूवमेंट करी गई पौंडीचेरी के अंदर, डुप्लेक्स ने काफी सारी इंप्रूवमेंट करी। नेक्स्ट चलते हैं। डुप्लेक्स, ओके, डुप्लेक्स यूज द नवाब ऑफ कर्नाटक टू फॉरबिड इंग्लिश। जो नवाब थे कर्नाटक के, डुप्लेक्स ने उनको कहा कि ठीक है, यू सपोर्ट मी अगेंस्ट इंग्लिश एंड आई विल गिव यू द टेरिटरी ऑफ मद्रास, विच ही डिड नॉट। सो ही समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स। तो यहाँ पे कैसे नवाब को उसने यूज किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और बाद में जो प्रॉमिस उसे किया वो भी नहीं उसने कंप्लीट किया, बिकॉज उसने कहा था कि मैं मद्रास की जो टेरिटरी है वो नवाब को दे दूंगा अगर मेरे को ब्रिटिश के अगेंस्ट में आप सपोर्ट करेंगे, विच ही नेवर गिव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। Who of the following is credited as an originator of subsidiary alliance? तो subsidiary alliance कौन लेके आए थे, किसको क्रेडिट दिया जाता है इसका? क्या वो ड्यूमस थे, डुप्लेक्स थे, क्लाइव थे या काउंट दे लैली थे? टेक 15 सेकेंड्स, बताइए क्या आंसर होगा इसका। Okay, so answer is, I'm pretty sure that you have your answer and you have the correct answer, duplex। तो डुप्लेक्स जो थे सब्सिडियरी अलायंस लेके आए थे। अब डुप्लेक्स को इसलिए भी जाना चाहता है कि जो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स थी ना, उसके अंदर काफी इंटरफेयर करते थे, और या कहा जाए तो काफी इंटरेस्ट लेते थे। जैसे हैदराबाद की बात आती है तो यहाँ पे ये मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। कर्नाटक की बात आती है तो यहाँ पे भी ये चांद साहेब को सपोर्ट कर रहे थे। तो इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर ये काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। बट जहां पे सब्सिडियरी अलायंस की बात आती है, इन्होंने कैसे यूज किया इसको? ही प्लेस्ड अ फ्रेंच आर्मी, इन्होंने हैदराबाद के अंदर एक फ्रेंच आर्मी को ठहराया, जिसका जो खर्चा होता था, द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस आर्मी वाज बोर्न बाय द सूबेदार। जो हैदराबाद के सूबेदार थे वो उसका पूरा खर्चा उठाते थे। सो सब्सिडियरी अलायंस यहां पे फ्रेंच ने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Who of the following governor raided आरकोट? आरकोट पे किसने हमला किया था, किसने रेड किया था उसे? तो चार ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव, डुप्लेक्स, लेनोयर, फ्रैंकोइस कैरन। टेक 15 सेकेंड्स, बताइए कि किसने इस पे रेड किया था आरकोट पर और उसकी वजह क्या थी। ओके, सो इट वॉज रॉबर्ट क्लाइव। क्या हुआ था? त्रिकोणापोली नाम की एक जगह थी जहां पे ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ फ्रेंच के रिप्रेजेंटेटिव फाइट कर रहे थे, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो पोजीशन थी वो नीचे जा रही थी, फ्रांस की जो पोजीशन थी वो ऊपर जा रही थी। इसलिए क्लाइव को एक आइडिया आया, क्यों ना हम आरकोट को अटैक करें। आरकोट वॉज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, ठीक है।
तो क्लाइव का ये कहना था कि अगर हम आर्कॉट पे अटैक करते हैं और इसे हराना आसान होगा, क्या होगा अगर हम आर्कॉट पे अटैक करेंगे तो सबका ध्यान आर्कॉट पे चला जाएगा, और जो चांद साहिब है जिसकी कैपिटल थी आर्कॉट, वो उसे बचाने के लिए भागेगा त्रिकोणापल्ली से। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, जो फ्रांस है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा और उनका जो डोमिनेशन नीचे चला जाएगा और ब्रिटिशर्स का जो डोमिनेशन है वो ऊपर आ जाएगा। सो इट वाज अ स्ट्रेटजी कि त्रिकोणापल्ली में अपनी कंडीशन और अपना स्टेटस, अपनी होल्डिंग को इंप्रूव करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आर्कॉट पे अटैक किया, उसको रेड किया, और यहाँ पे जो चांद साहिब थे जो त्रिकोणापल्ली में थे वो अपनी कैपिटल, जिसकी कैपिटल थी आर्कॉट, उसको बचाने के लिए भागे, और यहाँ पे उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो नीचे चला गया। सो दैट वाज द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे जो आर्कॉट पे रेड किया गया था, ये मानने वाली बात है, सिर्फ 210 लोगों ने इसको रेड करके अपने कब्जे में कर लिया था। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? गॉडेयू सक्सीडेड डुप्लेक्स एज अ फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो गॉडेयू जो थे वो डुप्लेक्स के बाद आए एज अ फ्रेंच गवर्नर। सेकेंड, गॉडेयू अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन विद इंग्लिश। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक नेगोशिएशन की पॉलिसी, ना कि वॉर की पॉलिसी अडॉप्ट करी। देखेंगे कि सही है कि नहीं है। टेक 15 सेकंड्स, बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें से। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, Godeyu succeeded Dupleix as a French Governor General in India. This statement is correct because पहले Dupleix आए थे और इनके जाने के बाद Godeyu आए। अब यस, Dupleix जो थे वो थ्रू कर्नाटिक वॉर्स अपनी फ्रेंच की जो एम्पायर थी उसको एक्सपेंड करना चाहते थे और ब्रिटिशर्स को चैलेंज करते रहते थे। Godeyu ने क्या किया? He said, I believe in negotiation and harmony. तो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से पैसिफाई कर दिया जाए ब्रिटिशर्स को और नेगोशिएट करा जाए उनके साथ। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका में इनकी सेटलमेंट्स थी उनको लेके काफ़ी चिंतित थे। तो क्या था, सीरियस रेपरकशन हो सकती थी अगर जो फ्रेंच हैं और ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो उसके रेपरकशंस अमेरिका में भी देखे जाएंगे। और फ्रेंच जो थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अमेरिका में उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो ब्रिटिशर्स की तरफ से। इसलिए पिछली बार जब ट्रीटी भी साइन हुई थी तो यही हुआ था, जो फ्रेंच थे उन्होंने मद्रास जो था वो ब्रिटिशर्स को दे दिया था, और उसके बदले में जो उनकी एम्पायर्स कहाँ पर थी, यूएस के अंदर, वो अमेरिका के अंदर, वो उनसे ले ली थी। तो इनका जो फोकस रहता था वो अमेरिका पे ज़्यादा रहता था। अब देखिए कुछ कुछ ही उससे मिलता जुलता है डच से। डच लोग भी जो थे वो इंडिया में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उनका जो मेजर फोकस था वो इंडोनेशिया था। तो इंडोनेशिया के लिए वो हमेशा चाहते थे कि इंडिया के अंदर अगर उनको कुछ देना भी पड़े ब्रिटिशर्स को वो दे देते थे, और ये कहते थे कि इंडोनेशिया में हमें तंग मत करिएगा। सिमिलरली जो फ्रेंच थे इनके लिए भी अमेरिका वाज फर्स्ट, अमेरिका उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंडिया में वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते थे इंग्लिश के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। काउंट द लैली वॉज हेडिंग फ्रेंच आर्मी, तो जो फ्रेंच आर्मी थी उसे काउंट द लैली हेड कर रहे थे। सेकंड, द वॉर वाज वन बाय ब्रिटिशर्स, तो थर्ड कर्नाटिक वॉर ब्रिटिशर्स जीत गए थे। बसी वॉज टेकन एज अ प्रिजनर बट काउंट द लैली, जो उनके गवर्नर थे, ही फ्लेड अवे, वो भाग गए वहां से। टेक 15 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट, क्या आंसर हो सकता है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, काउंट द लैली वाज हेडिंग फ्रेंच आर्मी। इस वक्त जो गवर्नर थे, जो हेड कर रहे थे, काउंट द लैली थे। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंग्लिश को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। कैसे? उनके जो फोर्ट्स थे सेंट डेविड और विजयनगरम, ये जो थे इन दोनों को अपनी पोजेशन में ले लिया था काउंट द लैली ने। इसी वजह से ब्रिटिशर्स दे फेल्ट ऑफेंडेड और उन्होंने भी स्टेप्स लिए। उन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम के अंदर जो फ्रेंच की फ्लीट्स होती थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, बदला लेने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड आते हैं, दिस वॉर वाज वन बाय ब्रिटिशर्स, जो थर्ड कर्नाटिक वॉर थी उसमें ब्रिटिशर्स जीते थे, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड इज बसी वाज टेकन एज प्रिजनर बट काउंट द लैली फ्लेड अवे, तो बसी को प्रिजनर बना दिया गया था, प्रिजनर ऑफ वॉर, बट काउंट द लैली जो थे वो भाग गए थे। आधी स्टेटमेंट ठीक है, बसी और काउंट द लैली दोनों को ही प्रिजनर बना दिया गया था, ठीक है। सो इट वाज थर्ड कर्नाटिक वॉर वन बाय इंग्लिश at Wandiwash.
ये वेंडी वॉश जो नाम है ये ब्रिटिशर्स ने दिए, इट वॉज वेंडी वासी एंड दिस प्लेस इज इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे थर्ड कर्नाटिक वॉर हुई थी जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो जीते थे। आंसर बी हो जाएगा, पहली दो स्टेटमेंट सही हैं, तीसरी गलत है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे। इट रीस्टोर द फ्रेंच देयर फैक्ट्रीज, तो जो फ्रेंच की जो फैक्ट्रीज थी उसको रीस्टोर कर दिया गया था, देखेंगे। सेकंड, फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिसअपियर्ड आफ्टर द वॉर, तो फ्रेंच का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो गया था। थर्ड, द इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर, तो इंग्लिश जो थे वो सबसे बड़ी यूरोपियन पावर बन गई थी इंडिया के अंदर। टेक 15 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट। आई थिंक 19 क्वेश्चंस करने के बाद जिसमें हमने फ्रांस और इंग्लिश के रिलेशंस को डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन को आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल नाउ। ओके, सो पहली स्टेटमेंट, इट रिस्टोर्ड द फ्रेंच देयर फैक्ट्रीज। यस, फ्रांस की जो फैक्ट्रीज थी उन्हें वापस कर दी गई थी आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। सेकंड, फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिसअपियर्ड आफ्टर द वॉर। यस, फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था इंडिया के अंदर वो काफ़ी हद तक खत्म हो गया था, काफ़ी हद तक लार्जली खत्म हो गया था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रीटी होती है ना तो यूजुअली यही होता है कि जो दो पावर्स आपस में लड़ती हैं वो एक दूसरे की जो उन्होंने टेरिटरी ली होती है वो वापस कर देती है, इसीलिए तो ट्रीटी होती है। तो चांसेस आर लाइकली, नॉट ऑलवेज बट चांसेस आर लाइकली कि जहाँ पे ये बात आती है कि इट रीस्टोर्ड देयर फैक्ट्रीज, द कैप्चर्ड और द एक्वायर्ड टेरिटरीज वर सीडेड बैक। इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होंगे कि जो भी वॉर के टाइम में उनकी जमीन ली गई थी वो वॉर के बाद ट्रीटी के टाइम में वापस कर दी गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट यूजुअली करेक्ट होंगी। नेक्स्ट, फाइनल स्टेटमेंट, द इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर, ये भी सही है। यूजुअली क्या होता है ना, बैटल ऑफ प्लासी जो है, ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई थी, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं दिस वाज द पॉइंट जिसके बाद हमें ऐसा लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं दैट विल बिकम द मास्टर्स ऑफ इंडियंस, और वो इंडिया के जो लार्ज एरिया है, इंडिया जो कंट्री है, इंडिया एज अ टेरिटरी को रूल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन बहुत से हिस्टोरियन कहते हैं इट वाज नॉट बैटल ऑफ प्लासी बट इट वाज बैटल ऑफ वेंडी वॉश, जो 1760 में हुई थी, 1760 में, कि दिस वाज द टाइम जब हम कह सकते हैं कि जो एक ही यूरोपियन पावर है जो कि इंडिया के अंदर सर्वाइव कर पाई है और थ्राइव कर पाई है, दैट इज ब्रिटिशर्स। तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1757 के बाद हम इजीली कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो होंगे वही इंडिया पे रूल करेंगे। लेकिन कुछ कहते हैं कि इट वाज 1760 जब हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का ये पक्का हो चुका था कि अब सिर्फ एक ही पावर बची है, दैट इज ब्रिटिशर्स, और वो इंडिया के ऊपर रूल करेंगे। इसमें एक चीज़ और समझने वाले कि जब भी लड़ाई होती थी फ्रांस के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, जो इंडियंस होते थे वो दोनों साइड से लड़ा करते थे। जस्ट अ रैंडम फैक्ट। तो यहाँ हमारे 20 MCQs कंप्लीट हुए हैं और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी वहाँ पे भेजा जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिंक। वहाँ पे डेली बेसिस पे काफ़ी सारे वीडियोस एंड अदर कोर्सेज जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो इट्स अ गुड प्लेस टू बी। यू कैन get the recent update about Unacademy Studio Rise. Thanks for watching this video. Give us a like if you like the video. Also tell us what else you want to see in these lectures. Subscribe the Unacademy channel and use the PL Live code to subscribe.